فضل الرحمان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس سے پہلے بھی اسلام آباد کی حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ ہے اس کو غیر شرعی قرار دے چکی ہے، اور یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی رائے نہیں بلکہ یہ امت کا اجتماعی رائے ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل اس ایکٹ کے خلاف اپنی رائے دے چکی ہے۔ آج اسی ایکٹ کے قریب اس کے مماثل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آج وہاں کی گورنمنٹ وہاں کے مسلمانوں کی اربوں ایکڑ پر مشتمل مسلم اوقاف کے خلاف ایک قانون پاس کرنے جا رہی ہے، ہندوستان مسلمان کے جائیدادوں کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کے وقف املاک کو جس طرح ہڑپ کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی حکومت نے پاکستان کے اندر رہ کر مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ضمیر ہے کہ اس ضمیر کو ایک دفعہ جھنجھوڑا جائے کہ ہم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی احکامات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں۔ مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے فیصلے دیے، بالآخر سپریم کورٹ کو اپنے فیصلوں کی اصلاح کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے معاملات، دوسرے نکاح کے معاملات پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہیں وہ قطعی طور پر قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف ہیں۔ میں نے اپنی عائلی زندگی میں نہ سپریم کورٹ سے پوچھنا ہے، نہ میں نے حکومت سے پوچھنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے تحت کرنا ہے، میں نے اللہ سے پوچھنا ہے اور اللہ ہی کے سامنے جواب دوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں کسی سپریم کورٹ کے ایسے غیر شرعی فیصلے اور حکومت کی طرف سے پاس کیے گئے غیر اسلامی قانون کا پابند نہیں ہوں گا۔ آئین کہتا ہے کہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو، کورٹ پابند ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے دے گی۔ ایسے فیصلوں کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف جائیں گے، دوبارہ کورٹ پہ اپنا مقدمہ لے کر ہم جائیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، آئین و قانون کے دائرے میں لڑیں گے اور یہاں پر اسلامی اقدار کو سربلند کریں گے۔ اسلامی اقدار و احکامات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دینا کسی ملحد کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اللہ کے سچے بندے کا کردار نہیں ہو سکتا۔ ہم کبھی بھی دفاعی پوزیشن پر آ کر اسلام کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جارحانہ انداز کے ساتھ اللہ کے دین کی جنگ لڑیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس حوالے سے ہم عوام میں بھی جائیں گے، ہم عوام میں بیداری پیدا کریں گے، ہم عوام کے اندر ایک شعور بیدار کریں گے کہ آپ کے ملک کے اندر اللہ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، چاہے وہ ہماری اسمبلیاں ہوں، چاہے وہ ہمارے حکمران ہوں، یا چاہے وہ ہماری عدالت ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو سکھر میں باب الاسلام کانفرنس کریں گے۔ یہ ایک عوامی اسمبلی ہوگی۔ ہم 8 دسمبر کو پشاور میں انشاءاللہ اسرائیل مرد آباد کانفرنس کریں گے، وہ بھی عوام کی اسمبلی ہوگی، اور ہم ملک کے اندر اس قسم کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو ان اجتماعات میں اٹھائیں گے اور
एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में अगर आप हुकूमत के साथ ताउन ना करते तो उन्होंने जो 11 लोग भेजे हुए थे उनके लिए वो पास करवाया। अब उस 27वीं आईनी तरमीम लेके आ रहे हैं और इसमें भी उनके पास ऑप्शन है कि वो 11 उनको इस्तेमाल करके तो पास करवाएं। तो आप उसको रोकने के लिए क्या? अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, ये बताइए कि अगर आज पार्लियामेंट से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरमला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब, ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपके जो जिस जमात के साथ आजकल हमांगी है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरा मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान मिल गया होगा। इसके साथ सवाल यह है कि एक सोशल मीडिया पर क्योंकि एक प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया। इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा PTI की 2 आला शख्सियात के ज़रिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लायामल बनाना चाहते हैं मुस्तक़बिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? शुक्रिया। आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है, तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं क्या करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का ख़ात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास होने जा रहा है, क्या ये उस पहले मुसवदे में था जिसको रोका गया, उसमें ख़त्म किया गया? ये उसका मफहूम वहाँ था। अब अगर मफहूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की, तो क्या उस अपने आमादगी की नफ़ी नहीं कर रहे? अभी तक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा नहीं मिला लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी तरह। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप फिर भी हुकूमत की मुखालफत करेंगे इस तरमीम में, या दोबारा फिर साथ दे सकते हैं? क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतमाल की बात है। जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतमाल की बात होती है, तो एहतमाल पर तो जवाबात नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हक़ाइक़ की तरफ आ जाएंगे। अजहर, ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी खौफनाक किस्म की चीज़ें थी, जिस पे हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर, एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजेस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला मेयार की कसौटी उस पर रखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पे बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए और ना ही कोई लालच होना चाहिए। तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार, चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है, तो क्या सीनियर जजेस हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे फैसले करते हुए? क्योंकि मुतअद्दिद केसेस में हुकूमत या तो फ्रीक होती है या उसमें मुजरिम के तौर पे खड़ी होती है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो एक हमारे एक हम खुद बनाया हुआ एक माहौल। क्या आर्मी चीफ का तयन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता? तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देखता रहता है। वो जिस प्राइम मिनिस्टर ने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसी को उन्होंने तिया पांचा कर दिया जी। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के तहत माजी में अदलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि जिससे बाकायदा
पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी थी और उसकी जो बालादस्ती थी और सुपरमेसी थी, वो जब बुरी तरह मुतासर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना होगा। अब जो रास्ता भी आप निकालेंगे, कोई ना कोई एक पहलू से उस पर एक सवाल तो मुरतब हो सकता है। तो इसमें मजबूरी तौर पर उसूल देखना चाहिए। कोई भी हुकूमत आएगी तो हर हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा, कोई ये मौजूदा हुकूमत का इख्तियार तो नहीं। आपके यहाँ और 26 पहली तरमीम में आपने कहा कि जहर था सांप का और दांत भी निकाल दिए। यकीनन वो पीटीआई का भी उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया हर फोरम पे। दूसरी तरफ अली बिन गन्ना कुछ कह रहे हैं कि आपने चमक से मुतासर हुए सौदेबाजी कर दी, तो आप इस पर क्या कमेंट करें? मेरे ख्याल में उनकी पार्टी से पूछा जाए, मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस बारे में। उनके अपनी पार्टी से अगर पूछ लिया जाए उनके बयान के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मुझसे उसका सवाल करें। मैं पार्टी से रिलेटेड हूँ, अफराद से नहीं हूँ जी। तो पार्टी ने जो बात मेरे साथ ये की हैं तो वो मेरे ख्याल में मुतमईन हैं और वो बड़े अच्छे बात हैं। किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब तहरीक चला रहे थे अयूब खान के ज़माने में, तो नेशनलाइजेशन जो है उसका प्रचार हो रहा था, और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम इदारों को नेशनलाइज कर भी दिया, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी थी 88 में को प्राइवेटाइज कर रही थी। तो दुनिया में सारे निज़ाम जो है वो चलते रहते हैं हालात के ज़रूरत के साथ। पूरे मुल्क में और खसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात आपके सामने है, जो सिक्योरिटी वहाँ पर मसला बना हुआ है। ये जो आर्मी चीफ और चीफ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है 3 साल से 5 साल, क्या आपको उम्मीद है कि ये जो हालात है इस तरह की दहशतगर्दी है ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा? और दूसरा बीबी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाइफ है, उसने आज अदालत में रोई है, तो उसने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई और उसको नाइंसाफ़ी पर मबनी सजा दी गई है। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है और क्या इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए? आप ये मुतालबा करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं, ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है, हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज़ करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाअल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फ़ौरन गिरफ्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपने बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 9 दिन आपकी गिरफ्त पर रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्ज़े में हैं, वहाँ क्या तीर मारा है कि अब उसके ऊपर इख्तियारात में भी इजाफा मांग कर आप आम लोगों को, सिविलियन लोगों को शक की बुनियाद पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना आपके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपके इख्तियारात में पहले से कोई कमी नहीं है। मज़ीद हालात का सहारा लेकर उस पर अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए बतौर जवाज़ हालात को इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। हालात ख़राब हैं, इसका माने है कि मेरे इख्तियारात में इजाफा करो और इजाफा करो ताकि सिविल इदारों की कोई हैसियत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक सिविलियन स्टेट के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ कराना है, वरना आपके किसी किस्म के पार्लिमानी फैसले को और आपकी हुकूमतों को बाहर की दुनिया में एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। दीदी की जो आज वक्त अदालत में रो पड़ी है कि उनको और बानी पीटीआई को नाइंसाफी पर मबनी सजा दी गई है, उसके हवाले से क्या कहेंगे? और इमरान खान को मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं इस पर बयानात दे चुका हूँ। उनके ख़िलाफ़ जो ज़ालिमाना रवैये हैं, मैं पार्लियामेंट में इस पर बात कर चुका हूँ, और आइंदा भी अगर उनकी पार्टी ने कोई राब्ता ऐसा किया तो मेरा जवाब अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अगर ये आपने ना मुसलसल तसलसल के साथ में ये सामने आ रही है कि चौथी बड़े चैनल में आप आम इंतखाबात का मुतालबा एक इसरार की तसलसल के साथ कर रहे हैं, तो आम इंतखाबात के लिए क्या आप लोग जो है अपोजिशन जमात है, मैं किसी खास जमात का नाम नहीं लेता,
अपोजिशन जमात की एहतजाजी तहरीक की तरफ जा सकती है आम इंतखाबात के मुताबिक के लिए? तो जाहिर है जी कि इस तरह के सवाल आप करेंगे तो रफ्ता रफ्ता माहौल बनता जाएगा फिर। हुकूमत का आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की तादाद 34 की जाएगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी असम्बली को एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना में तौसी और रद्दो बदल का इशारा भी दिया। कहा वक्त आ गया है अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। मईशत मुस्तहकम हो रही है, शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों, बरामदात और रोजगार में इजाफा होगा। इंतशार फैलाने, मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हुए। हम कानून साजी का चैलेंज है और स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुकूमत और इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास हो रहा है। स्पीकर चैम्बर इजलास में सीनियर रहनुमा शरीक हैं। नून लीग ने मुजव्वज़ा कानून साजी की वजूहात और मकासद से इत्तेहादियों को आगाह किया है। मुशावरती इजलास में बिल मंजूर कराने की हिकमत अमली पर भी गौर जारी है। मुशावरती इजलास के बायस कौमी असम्बली का इजलास 2 घंटे ताख़ीर के बावजूद भी अब तक शुरू नहीं हो सका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दौरा सऊदी अरब और कतर कामयाब रहा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से IT के तरबियत याफ्ता लोगों को भेजने का कहा। अमीर कतर ने भी पाकिस्तान में IT पार्क बनाने का इंदिया दिया है। अज़रबैजान का पैगाम आया है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। ये हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। ISPR का कहना है 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस बराए अमन 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि बात आइन और कानून की करेंगे, लेकिन सब जानते हैं आवाम की खिदमत का फ़ायदा ही नहीं। जहां खिदमत करनी है वहां सैल्यूट करो, सब मिल जाता है। सेनेट भी, असम्बलियां भी, पार्टी भी मिलेगी और इलेक्शन भी बन जाएंगे। बात तो हकीकत करेंगे, आइन की करेंगे, कानून की करेंगे, कसम खुदा की ये बात याद रखना। जब लोगों को ये पता है यार क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहां सलूट करते रहो, असम्बलियां भी मिलेगी, सेनेट भी मिलेगा, पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। इनको